آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ہر رات آتے رمضان میں، اور آنے کے بعد قرآن کا دور کرواتے تھے۔ ہر رات آتے تھے، قرآن کا دور کراتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، جس سال آپ کا انتقال ہوگا، آخری رمضان ہے، اس میں جبریل علیہ السلام نے 2 بار قرآن کا دور کرایا، 2 بار قرآن کا دور کرایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا، جبریل امین آتے قرآن کا دور کراتے تھے، تو صدقہ و خیرات کرنے میں نفلی صدقہ کو کیا ہے، تیز تل ہوا اور آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اس مہینے یہ کرنے کا ہے، اس مہینے میں غریبوں مسکینوں ناداروں یتیموں بیواؤں کو آپ دیکھ ریکھ کریں، انہیں دے نفلی صدقات وغیرہ۔ زکوٰۃ تو سال کے کسی بھی مہینے میں آپ کے مال پر فرض ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں فرض ہو، لیکن عام طور پر لوگ زکوٰۃ کو رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان ہی میں حساب و کتاب کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں نکالتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے، رمضان سے پہلے 4 مہینے پہلے آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، آپ کو اسی وقت نکالنا ہے۔ آئیے اور تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ کیا ہے، آپ سے شروع ہے، اور اس عشرے میں عید کے دن اور اس سے پہلے کیا ہے، صدقۃ الفطر جو زکوٰۃ کی ایک نوعیت ہے، اسے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اس میں نصاب ضروری نہیں ہے، مال میں تو نصاب ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں اللہ کے رسول نے نصاب نہیں بتلایا ہے۔ ہر جان کی طرف سے، ہر نفس کی طرف سے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعا من تمر او ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو واجب کیا ہے صدقۃ الفطر میں۔ کن کے اوپر واجب کیا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، ہر نفس کی طرف سے کیا ہے، یہ واجب ہے ان کو ادا کرنا۔ یہ حدیث ہے، کتنا ادا کرنا ہے؟ 1 سا غلہ ادا کرنا ہے۔ کتنا ادا کرنا ہے؟ 1 سا غلہ ادا کرنا ہے۔ ساعا من تمر او ساعا من شعیر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، یہ کیا ہے، ادا کرنا ہے۔ کب ادا کرنا ہے؟ کب ادا کرنا ہے؟ آئیے اس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے، سورج غروب ہونے ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہے، یہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد صدقۃ الفطر واجب ہو گیا، اب آپ اس کو نکال سکتے ہیں، اب آپ اس کو نکال سکتے ہیں، واجب ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ طلوع فجر، چاند نظر آ گیا، ابھی صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوا، طلوع فجر یعنی فجر کا وقت جب ہوگا اور عید کا دن کیا ہے، آ جائے گا، فجر کا وقت ہوا نا، عید کا دن آیا، اس وقت کیا ہے، صدقۃ الفطر کو واجب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن بہتر قول اور راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے چاند کے نکلنے کے فوراً بعد، واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، نکال دینا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک نکال دینا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کو سورج کے غروب ہونے کے بعد سے کیا ہے، نکالنا، یہ افضل ہے، یہ بہتر بتایا گیا ہے، عید کے دن نکال دینا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے، کوئی اگر نکالنا چاہے تو کتنے دن پہلے آپ اس کو نکال سکتے ہیں؟
कितने दिन पहले आमतौर पर क्या है माशरे में देखा जाता है कि रमजान का शुरू होने से कुछ लोग क्या है सदकातुल फित्र को निकालते हैं और लोगों में क्या है बांटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हदीस में कैद लगाई गई है, मुक़य्यद किया गया है। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है, अबू दाऊद की हदीस है, फकाना इब्न उमर युअद्दीहा क़ब्ल ज़ालिक बियौमिन औ यौमैन। ईद उल फित्र से एक दिन या 2 दिन पहले अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अदा कर देते थे। ईद उल फित्र से एक दिन या 2 दिन पहले, अबू दाऊद की हदीस है और सही हदीस है। बुखारी की हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि काना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसको अदा कर देते थे, युअद्दिल लज़ीना यक़बलूनहा क़ब्ल अल फित्र बियौमिन औ यौमैन व कानू युअतूना बियौमिन औ यौमैन। अब्दुल्लाह इब्न उमर और बाकी सहाबाए किराम भी सदकातुल फित्र को ईद से एक दिन या 2 दिन पहले अदा कर देते थे, जमा कर देते थे। कहाँ जमा कर देते थे? उन लोगों के पास जहां से ये सदकातुल फित्र तक़सीम होता है, लोगों में बांटा जाता है, जहां से तक़सीम होता है। इमाम बुखारी ने यक़बलूनहा की तशरीह की है कि उन लोगों को ये जमा कर देते थे जो लोग इनको लेकर बांटते हैं, ना कि फकीरों और मिस्किनों को देते थे, नहीं, बाद में अभी उन लोगों के पास जमा कर देते हैं जहां से क्या है ये तक़सीम हो रहा है, यानी बैतुल माल में जमा कर देते थे। या ये बुखारी की हदीस है। मुअत्ता इब्न मालिक की हदीस है जहां से पता चलता है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईद से 3 दिन पहले भी सदकातुल फित्र को भिजवा दिया करते थे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना यबअसु ज़कातुल फित्र 3 दिन पहले, हदीस में आता है बियौमैन औ सलासतिन, ईद उल फित्र से 2 दिन या 3 दिन पहले सदकातुल फित्र को उन लोगों के पास भिजवा दिया करते थे जो लोग इसको उसूल यादी करते थे और उसूल यादी में क्या है मामूल रहते थे या बैठते थे वसूल करने के लिए, उनके पास भिजवा देते। ये 3 तरह की हदीसें हैं। तीनों हदीसों का खुलासा यह है कि सदकातुल फित्र को ईद से पहले अगर आप निकालना चाहें तो 1 दिन पहले निकाल सकते हैं, 2 दिन पहले आप निकाल सकते हैं, 3 दिन पहले तक आप निकाल सकते हैं। ईद उल फित्र से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले तक निकालना ये जायज है, वरना मुस्तहब और अफजल अमल ये है कि ईद के दिन क्या है आप इसको निकालें और ईद की नमाज से पहले पहले इसको आप लोगों में तक़सीम कर दें। गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में वगैरह में क्या करना है, इनको आपको तक़सीम कर देना है। अफजल वक्त ईद के दिन तक़सीम भी कर देना है ईद की नमाज से पहले। जायज वक्त ईद से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले। उससे पहले क्या है, फक़हा ने लिखा है कि उससे पहले सदकातुल फित्र को निकालना दुरुस्त और जायज नहीं है। इस चीज का हम और आपको ख्याल रखना चाहिए कि निकालने का यह वक्त है। आप या तो क्या है, आप अगर इस्तिताअत रखते हैं कि हम खुद से बांट सकते हैं, गरीबों मिस्किनों को हम पहचान सकते हैं तो बांट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि आपके माशरे में जो आपका सरदार है या जिनको आपने क्या है चुन के क्या है मालिक जैसा मुंतखब किया है और वो इल्म है, उनको मालूम है कि सदकातुल फित्र का माल खर्च कहाँ किया जाता है, ज़कात का माल खर्च कहाँ किया जाता है, उनको मालूम है, तो फिर आप ऐसे लोगों के पास जमा कर सकते हैं ताकि वो सही जगह में उसको खर्च कर सके। लेकिन अगर वो क्या है, उनको मालूम ही ना हो कि सदकातुल फित्र का माल खर्च कहाँ करना है, ज़कात का माल खर्च कहाँ करना है, आपने दे दिया उनके पास, तो जहां चाहता है, जैसा चाहता है उसको खर्च करता है, जहां चाहा मुस्तहिक को भी दिया, गैर मुस्तहिक को भी दिया, जब तक देना था तब ना देकर महीनों भर क्या है वो बांट कर आता है, कुर्बानी तक उससे बात कर। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसे जाहिल लोगों के पास आप अपने सदकातुल फित्र को जमा ना करें, वरना आपका सदकातुल फित्र क्या है, बेकार हो जाएगा। ईद की नमाज से पहले तक सदकातुल फित्र को लोगों में तक़सीम कर देना है, ये जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वही अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, व अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूज अन्नास इला सलात, हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने कि लोगों की नमाज की तरफ निकलने से पहले पहले इसे अदा कर दो, तकसीम कर दो लोगों में, गरीबों में, मिस्किनों में, देवाओं में, यतीमों में क्या है इसे बांट दो, ये हुक्म है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर के हदीस का आखिरी टुकड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, फमन अद्दाहा क़ब्ल सलात फहिय ज़कातुन मक़बूला वमन अद्दाहा बअद सलात फहिय सदक़तुन मिन सदक़ात। जो नमाज ईद से पहले सदक़तुल फित्र को अदा करके तकसीम कर देता है, उनका ये सदका कबूल होता है, कबूल होता है। जिसने बाद में अदा किया उसका यह सदका कबूल नहीं हुआ। यह आम सदकों की तरह यह सदका है। जो वाजिब था आपके ऊपर सदकातुल फित्र, ये आपसे टला नहीं, और आप इसको हल्के में ना लें, मामूली ना समझे। जिस तरह रमजान के रोजे फर्ज हैं, जिस तरह क्या है रमजान के रोजे फर्ज हैं, जिस तरह नमाजें फर्ज हैं, ज़कात फर्ज है, उसी तरह से साल में एक मर्तबा सदकातुल फित्र फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत नहीं है, वाजिब है। हर जान की तरफ से क्या है निकालना जरूरी है। यहां तक कि ईद के दिन नमाज से पहले भी कोई बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो उस दिन उसका भी क्या है इससे निकाला जाएगा, तो ये वाजिब है। इसलिए क्या है आपको ध्यान देकर क्या है निकालना है, और ईद से पहले तक क्या है लोगों में क्या है बांट देना है, तकसीम कर देना है। हमारे इलाके में जो राज और मुरव्वज और ये गलत तरीका जो रिवाज पा गया है, सरदारों के पास क्या है सदक़तुल फित्र को हम जमा कर देते हैं, और उस सरदार ईद की नमाज से पहले नहीं, ईद की नमाज के बाद से दूसरे दिन से बांटना शुरू करता है, जो साफ और हदीस के खिलाफ है। फिर महीनों भर क्या है उनको बांटता रहता है, महीनों भर बांटता रहता है। हमारा ये इलाका क्या है इस मामले में गुमराही में पड़ा हुआ है। उलमा आपको सही रास्ता दिखला रहे हैं, सुधार लाइए। गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन गलतियों में मुसर नहीं रहना है, उसको सुधारना है। और ईद की नमाज से पहले पहले क्या है सदक़तुल फित्र को लोगों में क्या है तकसीम कर देना है, और इसे क्या है खत्म कर देना है, फिर अदा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सदक़तुल फित्र आपका अदा नहीं होगा। ये बड़े बड़े उलमा किराम का फतवा है, अल्लामा इब्न बाज वगैरह का फतवा है, और दूसरे उलमा किराम का फतवा है कि ईद की नमाज से पहले अदा कर देना है, ये जरूरी है। तो हमने मुख्तसरन आपको बतलाया, जो गलतियां हुई दोहराना नहीं है। अब ये से फिर क्या है आप ज़हन शादी कीजिए, माहौल बनाइए, ईद की नमाज से पहले हमको बांटना है। जो गरीब मिस्किन वगैरह है इन्हें क्या है हमें क्या कर देना है, इसको अदा कर देना है, दे देना है वगैरह। कितना देना है, एक सा देना है, 2.5 किलो बनता है। कितना बनता है, 2.5 किलो अनाज बनता है, या तो 3.25 सेर बनता है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सा होता था, पैमाना है नापने का। जिस तरह के आज के जमाने में क्या है पाए हम लोग नापते हैं चावल धान वगैरह को, उस जमाने में क्या है सा होता था। वो सा अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर है कि सुन्नत पे अमल हो जाए। लेकिन सा अगर यहाँ दस्तयाब नहीं है तो आप किलो से उलमा ने क्या है 2.5 किलोग्राम और 3.25 सेर क्या है वजन उसका मसावी बराबर करार दिया है। तो आप 2.5 किलो के हिसाब से क्या है प्रति आदमी क्या है आप निकालेंगे। कीमत अदा करने की शरई हैसियत क्या है। कोई अगर सदक़तुल फित्र को क्या है अनाज नहीं निकालता है, गल्ले को नहीं निकालता है, उसके बदले में कीमत निकाल देता है। जैसा कि आज हमारा माशरा इसी में डूबा हुआ है कि हर आदमी कीमत निकाल रहा है, और कीमत निकाल कर क्या है लोगों में बांट रहा है, कीमत निकाल रहा है। फिर बांट कब रहा है, ईद की नमाज के बाद बांट रहा है। गलतियां कितनी होने आपको मिला रहा, कीमत निकाल रहा है, फिर ईद की नमाज के बाद बांटता है। गलती फिर गलती सुधारना है, ईद की नमाज से पहले निकालना है। निकालना क्या है, गल्ले को निकालना है, अनाज को निकालना है। कीमत निकालने के ताल्लुक से क्या है कोई हदीस नहीं मिलती है। आइए इसके ताल्लुक से कुछ तफसीलन आपके सामने, लेकिन मुख्तसरन 5 मिनट खुतबा लेट होगा, घबराइएगा नहीं। रोजाना क्या है आपको इससे बातें सुनने को नहीं मिलेंगे, एक साल आएगा फिर दोबारा क्या है ये मौका आपको मिलेगा सुनने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर हजरत अब्दुल्लाह की हदीस है और अबू दाऊद की हदीस है, फराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र साअन मिन तमरिन अव साअन मिन शईर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान, एक सा खजूर या एक सा जौ फर्ज किया है। क्यों फर्ज किया है, अभी इल्लत बाद में आगे आकर बतलाएंगे कि जो लोग रोजादार हैं उनके रोजा में क्या है तो कुछ गलतियां हो जाए,
छोटे मोटे भूल चूक हो जाए उसकी तलाफी हो जाएगी इस सदक़तुल फित्र के जरिए से। और दूसरा पॉइंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है व तुअमतन लिल मसाकीन, ये मिस्किनों की खुराक है, ये मिस्किनों का खाना। ये दो पॉइंट है, ये दो मकसद है, ये दो हिकमत है शरीयत में जिनकी वजह से सदक़तुल फित्र को वाजिब करार दिया है। कितना वाजिब करार दिया? एक सा। किससे वाजिब करार दिया है? गल्ले से वाजिब करार दिया है। खजूर हो, जौ हो। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है जिसमें 4 किस्म के क्या है गल्ले और अनाज का जिक्र मिलता है। वो कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खजूर में से, जौ में से, किशमिश में से और पनीर में से एक सा निकालते थे और हम जो खाते थे उनमें से एक सा निकालते थे, एक सा अनाज, एक सा गल्ला निकालते थे। इन हदीसों से हमें मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबी पाक और सहाबाए किराम जो निकालते थे क्या निकालते थे? क्या निकालते थे? जो खाते थे। क्या खुराक थी उस वक्त? खजूर, किशमिश, पनीर, जौ, ये खुराक थी। गेहूं मुल्क अरब में नहीं था, इसलिए गेहूं का जिक्र हदीस में नहीं मिलता है। मुल्क शाम में गेहूं होता था, वहां से बाद में फिर यहाँ आने लगा, फिर गेहूं का जिक्र क्या है बाद में आया, वरना वहां की खुराक नहीं थी, बाद में वहां की खुराक बनी है। इसलिए हदीसों में आपको गेहूं का लफ्ज नहीं मिलेगा, मिलेगा दूसरे लफ्ज से मिलेगा, बाद के अखबार में क्या है आपको मिलेगा। तो ये सब अनाज है। खुलासा ये है कि जो खुराक है उनमें से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते थे, गरीबों मिस्किनों में क्या है बांटते थे और देते थे, पैसे में नहीं निकालते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैसा था, दिनार थे, दिरहम थे, ये थे सब, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं निकाला, सहाबा ने कभी नहीं निकाला। किसी एक सहाबी से इसका सबूत नहीं मिलता। एक मर्तबा भी सहाबी ने निकाला हो, एक मर्तबा भी नबी ने निकाला हो, पूरी जिंदगी में कभी नहीं। खुलफा राशिदीन का दौर, उसके बाद का के अदवार, कहीं आपको कोई सबूत नहीं मिलता है कि सहाबा के पीरियड हो, ताबेईन के पीरियड हो, इन लोगों ने सदक़तुल फित्र में क्या है अनाज के बदले में पैसे निकाले हो, कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर आज हम पैसे क्यों निकालें? क्यों निकाल रहे हैं? नहीं निकालना चाहिए। अल्लामा इब्न बास का फतवा है, अल्लामा इब्न उसैमीन का फतवा है और अल्लामा अलबानी का फतवा है, बड़े बड़े उलमाए किराम का फतवा है, जो वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान रखते हैं, जिनको देखने के लिए दुनिया तरसती है, उन लोगों का फतवा है कि सदक़तुल फित्र में कोई अगर अनाज और गल्ला को छोड़कर पैसे को निकलता है तो सदक़तुल फित्र कबूल ही नहीं होता। ओ सदक़तुल फित्र कबूल ही नहीं होता है। ये मामला माल भी जाए ढेर से, कबूल भी ना हो, गुनाह भी हो जाए, कितना बड़ा अलमिया है। इसलिए नबी से जो साबित है, सहाबा से जो साबित है, वो हमें निकालना है, अनाज निकालना है। और हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी मिराकुल मफातिह में लिखते हैं, अपने फतवा में भी क्या है लिखते हैं कि सदक़तुल फित्र में और माल क्या है, माल में, ज़कात में, ये सब में कीमत निकालना जायज नहीं है, कीमत निकालना जायज नहीं है, बल्कि अनाज निकालना है। यहाँ भी उलमा का क्या है, ये फतावे मौजूद हैं और उबैदुल्लाह मुबारकपुरी लिखते हैं बासूरत मजबूरी, इंतहाई दर्जे का कोई आदमी मजबूर हो जाए फिर कीमत निकाल सकते हैं। मजबूरी क्या है उलमा ने बतलाया है, उस मजबूरी को आइए मैं आपको बतलाऊं। वो मजबूरी है कि आपके घर में अनाज ही ना हो, मार्केट में अनाज ही ना हो, दुकान में अनाज ही ना हो, ऐसी सूरत में और निकालने का वक्त भी हो चुका है, ये मजबूरी है। और आपके पास पैसे है, करेंसी है, दिनार और दिरहम की शक्ल में है, फिर आप निकाल सकते हैं। लेकिन बताइए किसके घर में अनाज नहीं है, किस मार्केट में अनाज नहीं है, किस दुकान में अनाज नहीं है जो आप मजबूरी पेश कर सकते हैं? कोई मजबूरी नहीं है, मौजूदा दौर में कोई मजबूरी नहीं है कि आप पैसे निकालें। पैसे हैं, घर में अनाज नहीं है, मार्केट में है, आपके बगल में दुकान है, वहां से खरीदिए, 2.5 किलो का पैकेट बनाइए, ईद की नमाज से पहले क्या है गरीबों मिस्किनों में इसको आप बांट दीजिए। ये आपका फर्ज अदा होगा, आपको नेकियां मिलेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका फर्ज भी अदा नहीं हुआ, गुनहगार भी हुए और अदा भी नहीं हुआ। बड़ा अलमिया है ये। मुख्तसरन क्या है, मैंने आपको बतलाया कि जायज पैसा निकालना जायज नहीं है, अनाज ही क्या है निकालना है। बाज लोगों ने क्या है कुछ चीजें पेश की है, वो भी पेश करके मैं आपको रद्द कर देता हूं, फिर खुतबे को खत्म करता हूं। कुछ
लोगों ने क्या है, जो हिंदुस्तान के कुछ आलिम हैं जो बाकायदा तौर पर अपने चैनल में भी नजर आते हैं और इस तरह के इश्तिहारात से अवाम को गुमराह करते हैं, हदीस रसूल और सहाबाए किराम के अमल से लोगों को फेरते हैं, ये कहकर गुंजाइश है, जायज है, ये कहकर आज लोगों ने अवाम को इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई भी बंदा क्या है अनाज निकालने के लिए तैयार नहीं है, सारे लोग पैसे ही पैसे निकाल रहे हैं। वो दलील में पेश करते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबी है, इनका कौल है कि इन्होंने क्या है बाकायदा तौर पर पैसे को निकालना जायज करार दिया है। कौन? हसन बसरी। ये ताबे है, नबी का जमाना, उसके बाद सहाबा का जमाना है, सहाबा के जमाने के बाद ताबेइन का जमाना है। सहाबा हमारे लिए हुज्जत है, ताबेइन हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं है। हसन बसरी का ये कौल ज़ईफ है। पढ़े लिखे उलमा ये जानते हैं, बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। पॉइंट बदला के आगे निकलता हूं, ये हदीस ये असर ज़ईफ है। दूसरी बात यह है कि हसन बसरी ताबी है, हदीस रसूल और सहाबा के अमल के मुकाबले में इनकी बात और इनके अमल की कोई हैसियत नहीं है। अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी लिखते हैं मिरातुल मफाती में ताबेइन के सिलसिले में कि लैसा बिहुज्जतिन बिल इत्तिफाक, मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, सारे उलमा पर मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि ताबेइन का कौल व अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है, इसलिए इसको पकड़ के नहीं रख सकते। दूसरी दलील पेश करते हैं कि अबू इसहाक सबई, ये भी ताबी है, ये का कौल है कि अदरक्तहुम व हुम युअतूना सदक़त रमज़ान अद्दराहिम। इनका कौल है कि मैंने सहाबा को पाया कि वो लोग रमजान में सदक़तुल फित्र को दिनार और दिरहम की शक्ल में निकालते। कौन कहते हैं? अबू इसहाक सबई कहते हैं कि दिनार और दिरहम की शक्ल में सदक़तुल फित्र को सहाबाए किराम को हमने निकालते हुए पाया है। यानी ये साबित करना चाहते हैं कि सहाबाए किराम दिरहम की शक्ल में, पैसे की शक्ल में निकालते थे। आइए अबू इसहाक सबई के ताल्लुक साहब को बताएं, ये मुदल्लिस रावी है, उलमा इसको समझते हैं, आवाम नहीं समझ पाएंगे। मुदल्लिस रावी है, इनकी रिवायत का कोई एतबार नहीं है, निहायत ज़ईफ रिवायत इनकी है। आखिरी उम्र में इनका इख्तिलाफ हो गया था, इख्तिलाफ की बात की हदीस है, ज़हनी क्या है गड़बड़, कुव्वत हाफिजा खत्म हो चुका था, उसकी बात पे यह असर है, कोई एतबार नहीं है, इनकी बात का कोई क्या है एतबार नहीं है। इसका भी मैंने क्या है आपके सामने रद्द पेश कर दिया। तीसरी दलील लोग पेश करते हैं, उमर इब्ने अब्दुल अजीज ये खलीफाए वक्त है, खलीफाए वक्त है, सन गालिबन 99 हिजरी में खलीफा ये बने थे। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत क्या है सदक़तुल फित्र में पैसे को निकालने के लिए हुक्म जारी कर दिया था कि पैसा क्या है वसूल करो, सदक़तुल फित्र में पैसा वसूल करो। इन्होंने हुक्मनामा जारी किया था। ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज कौन है? ताबी है, सहाबी नहीं है। अभी मैंने बताया ताबी का कौल अमल हुज्जत हमारे लिए नहीं है, नबी का कौल अमल होते हुए, सहाबी का कौल अमल होते हुए ताबी के कौल का कोई एतबार नहीं, ताबी के अमल का कोई एतबार नहीं है, इसलिए इनके इस अमल को एतबार नहीं किया जाएगा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज दिनार और दिरहम पैसे की शक्ल में सदक़तुल फित्र को निकालने के लिए हुक्म जारी किया है, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल इतने बड़े इमाम सुन्नह, इनके बारे में तारीख पढ़ेंगे आंख से आंसू निकल आएंगे। एक सुन्नत जिंदा करने के लिए कितने कोड़े खाए थे, तफसील का मौका नहीं। इमाम इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सदक़तुल फित्र में जो आदमी चाहे अनाज को छोड़कर कीमत निकालता है उसका सदक़तुल फित्र कबूल नहीं होता है। कौन कहते हैं? इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं कि उनका सदक़तुल फित्र कबूल नहीं होता है। इनसे सवाल दोहराया गया कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज को निकालने का उन्होंने फरमान जारी किया है। कहते हैं अहमद इब्ने हंबल कि मैं तुम्हें हदीस रसूल पेश करता हूं और तुम कहते हो फलां ने निकाला, फलां का कौन है? यानी उनको कहा कि हदीस रसूल अमल सहाबा अमल रसूल के होते हुए किसी का कौल किसी का अमल नहीं देखा जाएगा, तो मरदूद करार पाएगा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का फरमान भी हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमर है कि हमें सदक़तुल फित्र में क्या है अनाज निकालना और गल्ले निकालना है, एक सा निकालना है, पैसा नहीं निकालना है, ये कबूल नहीं होगा। बाज लोग अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से क्या है बयान करते
करते हैं, उनका भी कौल है कि उन्होंने सदक़तुल फित्र में क्या है तो पैसे के निकालने को जायज करार दिया है। अल्लामा इब्न तैमिया का ये कौल नहीं, माफ फरमाइएगा। ज़कात के ताल्लुक से उनके जब पूरे बयानात मजमुए फतवा में जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सदक़तुल फित्र के ताल्लुक से क्या है उन्होंने क्या है ये बात नहीं कही है। ज़कात के ताल्लुक से क्या है बात कही है कि उसमें क्या है कीमत किसी अंदाज में। यहाँ एक दूसरा मसला है, उसकी एक लंबी बहस है कि ज़कात के मामले फिर कीमत निकालना कैसा है नहीं है, उतना तफसील का क्या है वक्त नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया का भी कौल क्या है सदक़तुल फित्र में कीमत के ताल्लुक से नहीं है, और बड़े बड़े उलमा इकराम के फतावे मौजूद है कि कीमत निकालना दुरुस्त नहीं है, गल्ला ही निकालना चाहिए। मसरफ इनका क्या है, एक दो मिनट में कहकर मैं खत्म करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस तुअमतुल लिल मसाकीन, ये मिस्कीनों की खुराक है, इसलिए सदक़तुल फित्र को मिस्कीनों में, गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में, फकीरों में आप बांटेंगे, तकसीम करेंगे। इसके अलावा इसका और कोई मसरफ नहीं है, इसका और दूसरी जगह खर्च करने की नहीं है। ज़कात का मसरफ कुरान ने 8 बतलाया है, और बाज लोग ज़कात के साथ सदक़तुल फित्र को मिला देते हैं, दोनों का मसरफ एक बतलाते हैं और एक ही जगह में सर्फ करते खर्च करते हैं। माफ फरमाइएगा, ऐसा नहीं है। सदक़तुल फित्र का खर्च करने की जगह अलग है और ज़कात के खर्च करने के 8 मसरफ है, और सदक़तुल फित्र के खर्च करने का 2 मसरफ कुरान ने हदीस में बतलाया है। मिस्कीन बतलाया है, मिस्कीन फकीर यहाँ खर्च करना है, वरना सदक़तुल फित्र को कुरान के हिसाब से क्या है आप मसारिफ के ज़कात के वहां खर्च कर देंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा। चुनांचे अल्लामा अलबानी, अल्लामा इब्ने और अल्लामा क्या है शमसुल हक अज़ीमाबादी, इमाम शौकानी, और इसी तरह से अलबानी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बड़े बड़े आइमा किराम, अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया, इन सब उलमा किराम का कहना है कि हदीस ने सदक़तुल फित्र का मसरफ वाज़े कर दिया है तुअमतुल लिल मसाकीन कहकर, इसलिए इसका मसरफ सिर्फ मसाकीन है, फकरा है, गरीब है, यतीम है, इनके अलावा कोई दूसरा इसका मसरफ खर्च करने की जगह नहीं है। ये बड़े बड़े उलमा किराम है, उबैदुल्लाह मुबारकपुरी का भी यही कहना है, इनका मसरफ मिस्कीन है, नादार है, यतीम है, वगैरह है, यहाँ इनको खर्च करना है। तफसील का मौका नहीं, वरना हर पॉइंट पे मैं दलील आपको बतलाता, वक्त ज्यादा कहीं गुजरता चला गया। ये आखिरी पॉइंट मेरा ये था कि इसका मसरफ मिस्कीन है, वही आपको ये खर्च करना है। और आखिरी पॉइंट ये है कि जहां क्या है इस माल को आप वसूल करते हैं, बरेड का इलाका है, बरेड में क्या है आपने सदक़तुल फित्र को क्या है वसूल किया, यहाँ के लोगों ने क्या है लाकर ये जमा किया, तकसीम कहाँ करना है, यही करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल को जब यमन भेजा ज़कात वसूल करने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए, लंबी हदीस है, वहां अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया था कि वहां के मालदारों से ज़कात लेकर वही के गरीबों में तकसीम कर देना है, वही के गरीबों में। इसमें ज़कात जहां से आप वसूल करें वही के गरीबों में, सदक़तुल फित्र को जहां से वसूल करें वही के गरीबों में आप तक गरीब जब मुतमईन हो जाए, वहां के नादार, बेवा, यतीम वगैरह जब पेट भर जाए, फिर इसके बाद आप कुर्ब जवार के जो आपके बस्ती गांव है वहां तकसीम कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। आज का अलमिया ये है, अपने घर के बगल में क्या है पड़ोसी भूखे मर रहे हैं, कपड़े नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा है, बाहर से लाइन और कतार भी लोग लगे हुए हैं, उनको हम बांट रहे हैं और दे रहे हैं, घर के बगल में नहीं दे रहे। ये जवाब लगेगा, आपके माशरे में लोग भूखे थे, नंगे थे, भूखे प्यासे थे, उनको आपने नहीं देखा था, नहीं दिया था, बाहर के लोगों को दिया था तफसील के मौका। तो पहले आप अपने यहाँ देखिए, यहाँ से बच जाए फिर बाहर इसका तकसीम करना है। ये क्या है, मैंने सदक़तुल फित्र के ताल्लुक से मुख्तसरन आपको बतलाया, ज़कात के ताल्लुक से मुख्तसरन आपको बतलाया, शब-ए क़द्र की फजीलत के ताल्लुक से मुख्तसरन आपको मैंने बतलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में दीन की, कुरान और हदीस की समझ अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा, हमारी नई नस्ल को और नौजवानों को दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हम सब की ईमान में ताज़गी अता फरमा, कुरान और अहादीस पर सही तौर पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتم وهم وأكبر